Yes, the very first sound which we have to be careful about in English language, that is the pronunciation of ta. And according to phonemic analysis, wherever we have to work on, you have to make assignments, right? Especially for tomorrow, the words which start with ta and the words which end with ta sound. You have to make lists and I will ask their pronunciation. Now, secondly, what other sounds where we have to be conscious and we have to be cautious as well, how to pronounce them, they are going to come in the next slide. Okay, collectively we've got certain sounds here now. I have mentioned those sounds in which the people of Pakistan have to focus. It means consonant sounds to focus on more in Pakistan. We have talked about ta. Now let's see the pronunciation of pa. We have to pronounce pa, ta, ka and cha. Four of the pronunciation, four of the sounds in the beginning aspirated. Aspirated just like it was ta into ta, so pa into pa, or ka into ka, or cha into cha. I am going to write the examples related to these words in front of you. I have a word, for example, pet, or pen, or parents, right? And if the word starts with ta, just like tell, or if the word starts with ka, for example, kind, or cat, and the word, for example, chair. Now, these words have these sounds in the beginning of the words. Pa in the beginning of the words, it's not pa, rather it's pa. Pen. There could be other examples in your mind, just like parents, particular, pronounce, not pa, rather p. And about ta we have done already a certain practice, just like technology, or the word starts with table. Okay, now I have written two examples of ka. One starts with K spelling, the starts with C spelling. Certain words which start with C, they have ka pronunciation, but some words are there which start with C but they are pronounced by sa sound. For example, C-E-L-L, that is cell. तो ऐसा सी जो तो सीन की आवाज देता है, जैसे सेल है, उसको हम इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे. सी के सिर्फ वही एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं जो का की साउंड देंगे, जस्ट लाइक CAN can, CAT cat, CAM cam, and its full word camera, CMERA. So this word is ka, not ka, क्योंकि ये शुरू में साउंड आ रही है, चाहे वो फिर के से हो, जस्ट लाइक काइंड. के काइंड और काइंड में फर्क है. KILL kill, and CAMEL camel, 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 right? So अब यहाँ पे आगे हम ये भी सी से शुरू हो रहा है, लेकिन ये CH कलेक्टिवली चा की साउंड देता है, तो ये सी अलग था जो का के साथ रिलेटेड है. हमने क्या देखना है, हमने सिर्फ वर्ड को देखना है कि ऐसा वर्ड जो के से शुरू होता है उसको खा से बोलेंगे. अगर वो चा साउंड से शुरू होता है तो उसको छा से बोलेंगे जस्ट लाइक चेयर. वो चाहे फिर स्पेलिंग जो मर्जी हो, ठीक है, के से जो मर्जी स्पेलिंग हो, ठीक है. एक चीज इसको मद्देनजर हमने रखना है, वो है जैसे हमने TH के साउंड के स्पेलिंग, जो भी वर्ड्स TH स्पेलिंग से शुरू होते हैं उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया था,
इस तरह पी एच से जितने भी वर्ड्स हैं वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। पी एच वाले भी इधर डील नहीं होंगे, क्योंकि पी एच फा की साउंड होती है और फा तो का पा से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट लाइक हम कहते हैं पी एच ओ एन ई फोन, सही है, तो फोन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे टी एच आई एस दिस को नहीं करते, पी एच वाले मतलब पी एच वाले और टी एच वाले वर्ड्स इधर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो तो साउंड ही फा है। हमने देखना है कि जिनकी साउंड पे हो उसको फा बनाना है, और जो तो है ही फा उसको रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखनी है कि जैसे पी एच ओ एन ए फोन, ठीक है, इसको हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये पी सिर्फ नहीं है, पी एच आ गया और वो फा की साउंड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह टी एच वाले, जैसे टी एच ई है द जिसे हम कहते हैं, तो ये भी सिर्फ टी नहीं है, टी एच है। तो वो अब इसे ठा तो नहीं पढ़ने लगे हम, क्योंकि शुरू में ये अगर टी आ भी गया क्योंकि ये टी एच है इस वजह से। अच्छा, इस तरह कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो के से शुरू होते हैं लेकिन उनके बाद एन आ जाता है, और वो तो वैसे ही के को फिर हम साइलेंट कर लेते हैं, के एन आई एफ ई, नाइफ जिसे बोलते हैं, वो तो के साउंड है ही नहीं। हमने वो लेना है जो के एन ना लिखा हो, के एन के बगैर वाले, ठीक है, राइट। इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है कि इनको हमने इंक्लूड नहीं करना एस्पिरेशन करते हुए। सो दे आई एम गोइंग टू पुट अ क्रॉस ओवर देयर विद दिस बॉक्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, तो अब के की का साउंड जिसे हम के बोलते हैं, जिसे हम उर्दू में काफ बोलते हैं, काफ को अगर शुरू में बोला जाए तो वो खाफ हो जाएगा। जैसे हम काफ और दो चश्मों वाली हे बोलते हैं, खोखर, इस तरह काइंड, खा की साउंड आ जाएगी। कैट, कैमरा, किचन, किल, कैंगरू। सो जितने भी वर्ड जो का से शुरू होते हैं वो खा की साउंड होंगे, तो चाहे वो क्यू लेटर से ही क्यों ना शुरू हो जाए। जैसे हमारे पास वर्ड है क्वीन या क्वेश्चन, राइट, तो ये क्यू से शुरू हो रहा है, तो ये चाहे के हो, सी हो, क्यू हो, उसको हमने खा कैटेगरी में ही रखना है। हाँ, कौन सा के में नहीं शामिल होगा, जो के के बाद एन होगा उसको खा की कैटेगरी में नहीं रखना, वो तो के वैसे ही साइलेंट हो जाते हैं लगने की वजह से। तो वो नाइफ है, उसको तो हम अब नाइफ तो नहीं पढ़ेंगे, सही है। तो हमने देखना है पर्टिकुलर साउंड्स। होपफुली दैट इज क्लियर टू यू। नाउ दिस वर्ड इज चेयर, चैलेंज, चैंपियन, जब ये शुरू में यूज होते हैं, राइट। So I have to mention over here three things for this matter. First of all, aspirated in the beginning. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों की चारों साउंड्स हैं, चाहे पी हो, के हो या सी चा वाली साउंड हो, ठीक है, इनको शुरू में, वर्ड के शुरू में हम क्या करते हैं, एस्पिरेटेड। एस्पिरेटेड का मतलब होता है हा के साथ मिक्स करना, फ, ठ, ख, छ, लेकिन ये शुरू में होगा, राइट। सेकंड चीज क्या है, सेकंड ये है कि अनएस्पिरेटेड, अनएस्पिरेटेड, या इसे हम अब नॉन एस्पिरेटेड लिख देते हैं, किसे हा के साथ मिक्स नहीं करना। कहाँ पे, इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स, जब ये चारों की चारों साउंड्स किसी वर्ड के दरमियान में आ जाए, जस्ट लाइक पी ही है ना, तो मैं अगर वर्ड यहाँ पे स्पीक बोलता हूँ तो ये पी साउंड यहाँ पे मिलेगी हमें, ना के फ, राइट। जबकि इधर क्या होगा, ये वर्ड है पॉप, राइट, फा से शुरू हो रहा है। तो
ये दो चीज़ें अभी हमने देख ली हैं इन चारों साउंड से रिलेटेड। एस्पिरेटेड ओनली एंड ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, राइट, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के शुरू में ये एस्पिरेटेड होगा। और नॉन एस्पिरेटेड का मतलब है हा की साउंड इसमें नहीं आएगी इन द मिडल ऑफ वर्ड्स, राइट। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं थर्ड थिंग, एंड पे इसको क्या करेंगे, तो आप इसे कहेंगे अनरिलीज्ड या क्लोज्ड, क्लोज भी कहते हैं, अनरिलीज। चारों के चारों को साउंड्स को हमने अनरिलीज्ड at the end of words, we have to make the sound closed. We will not release the sound at the end of words. For example, P की मैं आपको example दे रहा हूँ. For example, there is a word gap, G-A-P, gap. अब देखें P एंड पे है तो उसे गैप या गैप नहीं बोलेंगे बल्कि गैप, मतलब अपने होंठ रोक लेंगे वहां पे और हवा को मजीद आवाज के साथ नहीं निकालेंगे। गैप, मैप, हेल्प। अब हेल्प, मैप, गैप, ना तो ये पा होगा और ना ही फा, जस्ट लाइक गैप, राइट। हाँ, फा कहाँ पे है, सिर्फ शुरू में, फॉप। हम देखें शुरू में फा है इसलिए फा बोला गया है, एंड पे उसे क्लोज कर देंगे, पॉप, फाइन। सो पॉप म्यूजिक, तो ये पॉप म्यूजिक, तो ये तो पंजाबी लहजा, जैसे हम पंजाबी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हर लफ्ज के एंड वाली साउंड के सामने आ हमने लगाना ही होता है, पॉप, पॉप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक। तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक हो जाएगी। सो ये पा के लिए नहीं, ये बल्कि सब के लिए ही है, ये जो चारों की चारों साउंड है, पी, टी, के, सी, एच, ये तो चलो मैंने स्पेलिंग लिखे, लेकिन जो भी इनकी प्रोनाउंसिएशन हो उसके साथ ये रूल अप्लाई करेंगे। होपफुली दैट इज क्लियर टू यू। अभी ये चार साउंड्स हैं, इनके साथ एक ही बिहेवियर करना है हमने, they will be the same thing। और वो कौन सा बिहेवियर है, पहला पॉइंट एस्पिरेटेड, सेकंड पॉइंट नॉन एस्पिरेटेड, एंड थर्ड इज अनरिलीज्ड एट 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ड। टी के दो और पोजीशंस भी थी जो वॉल्स के साथ कनेक्टेड था या ईएन लगता था, वो इसलिए वो अलग से मैंने बता दिया, लेकिन जो पा का और छा के 3 ही एलोफोन्स हैं, ठीक है। सो अप टिल नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अच्छा, अब आपकी एक्टिविटी में ये जो ये वाला स्टेप है, मैं पहले पॉइंट का, ठीक है, इसको बोल्ड करने जा रहा हूं क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, और ये इंग्लिश में और उर्दू में डिफरेंट है, इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। जबकि ये जो नॉन एस्पिरेटेड है ये तो ऑलरेडी हम सही बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम पी को शुरू में भी पी पे बोलते हैं, दरमियान में भी पे बोलते हैं, एंड पे पे बोलते हैं। पॉप, स्पीक और गैप हर जगह पे पे आ रहा है, लेकिन इंग्लिश पीपल ने तीनों की जगह डिफरेंट करनी है। हाँ, मिडिल में कि में जब नॉन एस्पिरेटेड, वो तो हम ऑलरेडी कहते हैं स्पीक, तो वो सही है, लेकिन फ को सही इंप्रूव करना है और इसको करना है। अब आपने उसी तरह जैसे मैंने कहा था टी की एग्जांपल्स सिर्फ लिखनी थी, सॉरी पिछली स्लाइड में मैंने कहा था टी की एग्जांपल्स लिखनी थी 2020। अब आपकी एक और एक्टिविटी है जिसमें आपने क्या करना है, सिर्फ टी नहीं बल्कि पी, के और चा, आपने वो वाले वर्ड्स पकड़ने हैं जिसके शुरू में पी हो 20 वर्ड्स और एंड पे भी पी हो 20 वर्ड्स। फिर आपने वो वाले 20 वर्ड्स पकड़ने हैं, टी शुरू में भी हो, उसकी एक अलग लिस्ट बनाए पेज पे, और 20 वर्ड्स एंड में दिए हुए हों। फिर इसी तरह आपने का साउंड वाले, अब जरूरी नहीं है सिर्फ के स्पेलिंग हो, वो क्यू भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, ठीक है। तो वो का साउंड जिसके शुरू में आएगी वो भी वाले भी 20 वर्ड्स, और 20 वर्ड्स वो जिनके एंड पे का आता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक, ये वर्ड ब्लॉक होगा। स्पीक, ये स्पीक नहीं होगा क्योंकि एंड पे किया आ रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, लास्ट पे उसको अनरिलीज करते हैं, मतलब रिलीज साउंड नहीं करते। फाइन। इसी तरह चा है, जस्ट लाइक चीयर, चर्च, चैलेंज, चैंपियन, चैप्टर, राइट, चिप्स, सो डिफरेंट वर्ड्स। और इसी तरह ही 20 वर्ड्स आपने वो वाली लिस्ट बनानी है जिसमें
एंड पे आता है, इट्स लाइक रीच, RREACH, रीच। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। ओवरऑल दे विल बी 80 वर्ड्स, फा था खा छा, 20 वर्ड्स 80 शुरू में हो जाएंगे, एंड ओवरऑल 80 वर्ड्स विल बी वेयर फा था खा छा कम्स एट द एंड। तो 80 वर्ड्स ये हो जाएंगे। सो ऊपर हेडिंग्स आपने देनी है, ये कौन से वर्ड्स लिख रहे हैं, फा इन द बिगनिंग, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी 20 वर्ड्स। फिर फा एट द एंड 20 वर्ड्स। फिर आपने ऊपर एक हेडिंग देनी है, था इन द बिगनिंग, था एट द एंड, खा इन द बिगनिंग, खा एट द एंड, छा इन द बिगनिंग, छा एट द एंड। फाइन, ओके। फिर लिखना मकसद नहीं है, असल मकसद तो बोलना है। लिखना किस लिए, ताकि आप माइंड में रियलाइज करें, सोचें। जब आप लिख लेंगे आपके ज़हन में वर्ड्स अपीयर हो जाएंगे, फिर आपने उन्हीं उस पूरी लिस्ट को बार बार बोलना है। जैसे आप लिखते हो पी के वर्ड्स आपने लिखनी है, तो आप कहते हो पेन, पेंसिल, पोर्ट्रेट, पॉप, पर्टिकुलर, प्लान, जो भी वर्ड्स आपने लिखे हुए वो बोलते जाए एक ही सांस में। और हर सांस में क्या होना चाहिए, आपके वो आनी चाहिए फा की प्रोनाउंसिएशन, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा एस्पिरेटेड साउंड की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में बताऊं, सिर्फ 1 मिनट। अब ये देखिए, आपके सामने मैंने एक पेज रखना है, ठीक है, पेज, राइट। उर्दू में पेज कह देते हैं, इंग्लिश में पेज कहना पड़ेगा। अब एक मेरे पास पेज है, मैं इसे पेज कहता हूँ ना मुंह के सामने रख के, तो इस पेज को कोई असर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा ना पेज, तो फौरन ही मुंह से क्या होती है, एक पफ ऑफ एयर लगता है, वो आप फा फा हा का आने की वजह से जो हवा है वो टच होती है। तो मैं जैसे कहता हूँ पेन, पेन, तो जैसे ही पेन कहूंगा तो एक झोंका आएगा मुंह से जो इधर लगता है। तो आप जितनी दफा पेन कहेंगे, कोई पेन 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 कोई झोंका नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे ना पेन पेन पेन, पेज, पर्टिकुलर, टेंस, टेंस, टाइम, टेबल, टॉक, टेम्परेचर, तो हर एक प्रोनाउंसिएशन में इसको कहते हैं एस्पिरेशन, कि हा की आवाज जो है ना उसके साथ हवा बाहर आए और उसका असर फील हो। इसीलिए छा छा छा, चैंपियन, राइट। सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट। इस पर थोड़ा सा काम कर ले, मतलब एक वीक के लिए, एक 1 वीक जस्ट अपने माइंड को कॉन्शियस करेंगे इन अल्फाज को कैसे प्रोनाउंस करना। जब तक ये चीजें आप अपने माइंड पे तारी नहीं ना करेंगे, आपकी वो आदत का हिस्सा नहीं बनती। और जब तक आदत का हिस्सा नहीं बनती, आप उसे अप्लाई कभी भी नहीं करते। चूंकि ये सारी लैंग्वेज की स्टडी स्किल्स हैं, और ज़हन में रखें स्किल उसी वक्त ही इम्प्रूव होती है जब आप उसको अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे। और परफॉर्मेंस कब आती है, जब आपने एक अच्छी प्रैक्टिस कर रही हो। जैसे लिखे ना वर्ड प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस और या प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। So there is a difference. Fine. So over here we have talked about these 4 sounds up till now. अच्छा बेटा, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक कोई कंफ्यूजन है? यू वांट टू रेज क्वेश्चन, यू आर वेलकम। इफ यू वांट टू have any clarity, is there any confusion, you can ask me. Yes, I would refer Mr. Mudassir. Is there any question up till now? No sir, it's clear. चीज़ें क्लियर हो रही है ना? असल में जो रूल्स अभी थोड़े हैं या उसको समझना आसान है, और जो पर्पज है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। हमजा आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप बोलें, या आयशा आपको क्वेश्चन है तो आप बोलें प्लीज, अदरवाइज वी शुड मूव अहेड। ठीक है, नो क्वेश्चन सर। थैंक यू। बस मुझे अप्लाई करके आपने कल दिखाने हैं, ठीक है। आप मुझे पेज दिखाएंगे, लेकिन पेज के साथ आपने बोलना है असल काम जो है, और बोलेंगे एक एक करके बोलते जाएंगे, एंड आई विल फील कि आप उसको सही तरह प्रोनाउंस करते हैं।
जितना इम्पोर्टेंस इन साउंड्स को शुरू में बोलने पे लगाना है ना, उतना एंड पे भी लगाना है। वो बेसिकली हमारा लहजे का को लीक आउट कर देता है कि जब हम उर्दू या पंजाबी बोलते हैं तो आखिर पे जो साउंड निकलती है ना, वो हमारे लहजे की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो जैसे ही आप भी बोलना शुरू कर लेते हैं तो इंग्लिश लोग समझ जाते हैं ये किस एरिया का बंदा लगा, और वो इंग्लिश लाइक नहीं लगता। जैसे द वर्ड लाइक, लाइक लाइक पे आके वहां पे रोक दिया हमने, LIKE, तो ई तो वैसे ही साउंड नहीं है ना उधर, तो लास्ट पे तो का साउंड था, तो उसको हमने क्या किया, लाइक। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं जिसको हमें एंड पे रोकना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि ये जो 4 साउंड्स हमने अभी देखी है ना, इनके अलावा इंग्लिश में और कोई एस्पिरेटेड साउंड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी है ना, बी जैसे, तो बी को हमेशा इंग्लिश लोग बी ही बोलेंगे, कभी भी भा साउंड इंग्लिश में होती नहीं। जैसे उर्दू में तो है, हम कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है तो नहीं ना कहते, हम कहते हैं ये मेरा भाई है। उर्दू में तो इन 4 साउंड्स के अलावा भी एस्पिरेशन है, हम बी के साथ हा मिक्स कर सकते हैं, हम गा के साथ हा मिक्स करते हैं, तो आप कहते हो ये मेरा घर है। हम ये तो नहीं कहते हम ये मेरा घर है, घर और घर में फर्क है। लेकिन इंग्लिश लोग कभी भी घा बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनकी जुबान का ये हिस्सा ही नहीं है। तो इनके अलावा किसी और साउंड को एस्पिरेट नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो अभी हाफ चीजें सीखी होती हैं, उन्हें कुछ एस्पिरेशन का पता है, तो वो फा भी बोल रहे होते हैं और घा भी फिर बोल रहे होते हैं। नो, ये जो फा ठा खा छा है, ये बोलना है हमने शुरू में, लेकिन इसके अलावा कहीं और एस्पिरेशन इंग्लिश में है ही नहीं। ना किसी और साउंड में है एस्पिरेशन, ना किसी और जगह पे है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन हमेशा बिगनिंग में होती है और सिर्फ इन्हीं 4 साउंड्स की होती है। ठीक है, तो किसी और पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट साउंड विच इज रा। ठीक है, अब रा है, इसको कैसे हमने प्रोनाउंस करना है। ठीक है, रा के लिए बेसिकली अगेन वी हैव प्लेसेस, जैसे बिगिनिंग है और मिडल होगा और एंड होगा। ठीक है, बिगिनिंग वर्ड, आप क्या मुझे कुछ वर्ड्स दे सकते हैं जिसमें रा साउंड बिगिनिंग में आए? कोई भी स्टूडेंट प्लीज, ऐसा वर्ड जिसमें रा बिगिनिंग में आता है। रेंज, ओके, हमारे पास एक एग्जांपल आ गई, रेंज, RANGE। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड बोले कि जो बिगिनिंग में हो और सॉरी, और जो मिडल में हो। worried, 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 ORRIED, worried। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड दें जिसमें एंड पे आ जाए। लेटर, एंड लेटर के लिए लेटर, फॉर एग्जाम्पल letter, LETTER, letter। वेरी गुड, यू हैव गिवन मी गुड एग्जांपल्स। अच्छा, कोई और स्टूडेंट मुझे मिडल में कोई एग्जांपल और दे सकता है? ब्रिज, यस, ब्रिज। कोई और एग्जांपल बेटा? ब्रेन, ब्रेन, वेरी गुड। कोई और एग्जांपल? अरेंज, 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 ठीक है। कोई और एग्जांपल सोचें, मिडल में हो रहा। ओके, चले मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। बैरियर, आई थिंक। ओके, बैरियर,
वो आपको एग्जाम्पल सोच नहीं सकते जो मैंने आपको बतानी है, शायद आप सोच लेते बता देते, लेकिन आई गिव यू द एग्जाम्पल FIRST, ओके, इसमें भी रा है, फिर BIRD, इसमें भी रा है, ओके, PARK, इसमें भी रा है, ठीक है ना। अच्छा, ये चूंकि काफी छोटे हो गए अल्फाज, तो इनको यहां से मैं कट करके स्लाइड पर ले जाता हूँ। ये मुझे लगता है कल स्टडी होंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास अभी, तो रा को भी कट करके मैं अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ। कंट्रोल X एंड न्यू स्लाइड, ओके। अच्छा बेटा, आपने ये देखा कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास रा साउंड की डिफरेंट पोजीशंस पे वर्ड्स के। सबसे पहले बिगनिंग देख लेते हैं। अच्छा, रेंज, रेंज, मैंने इस वर्ड को 2 दफा बोला है, क्या दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है या डिफरेंट है? दोबारा सुने, एक दफा दोबारा सुने। रेंज, रेंज, डिफरेंट, डिफरेंट। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में हम इसे रेंज बोलते हैं, रेंज, बिल्कुल ना स्मूथ अंदाज में बोल देते हैं, जबकि इंग्लिश लोग डायरेक्टली रा के साउंड को नहीं बोल पाते। जब भी रा बोलना होता है ना, तो वो जुबान को थोड़ा सा ऊपर जाके टर्न करते हुए ना हल्का सा आ जाता है। रेंज, रेंज, रिवर, रेनबो, रेल, रियल। अब देखिए मैं कहता हूं रेन, रियल, रेनबो, फर्क आ रहा है ना नजर। तो जो डायरेक्ट है, जो हम बगैर हल्के से साउंड के बगैर बोलते हैं, वो बेसिकली पाकिस्तानी लहजा है बड़ा स्लाइट सा डिफरेंस, लेकिन जब आप बोलते हैं तो पता चल जाता है। एग्जामिनर फौरन ही अंदाजा लगा लेता है कि ये आपके लहजे का है या इंग्लिश लहजा। इसको थोड़ा सा अगर आप गौर करें, कोई 15-20 वर्ड्स आप इस तरह जो रा से शुरू होते हैं उसको प्रोनाउंस करें और देखेंगे क्या उसमें चेंज आती है। जब भी बोले फॉर एग्जाम्पल रेंज, 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 अब देखते हैं ये जो टंग है ना, ये थोड़ी सी ऊपर जाती है, खिंचाव पैदा होता है उसमें। उस खिंचाव के होने के दौरान हल्की सी रा की साउंड प्रोड्यूस हो, की साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे नहीं अर, हम अगर अर बोले ना, तो अर तो बहुत बड़ी साउंड होगी ना, इसको हल्का सा बोले रेंज। जैसे हम आमतौर पे अरेंज बोल रहे हैं, अरेंज में तो लंबा कर देंगे ना अरेंज, तो वो अरेंज नहीं, रेंज, हल्का सा, बहुत लंबा नहीं बल्कि हल्का सा। जितने भी रा वाले वर्ड्स हैं, हमारी उर्दू में एक फ्लुएंसी है, हम बड़े फ्लो में बोल लेते हैं रेंज, रियल, लेकिन इंग्लिश लोगों की ये साउंड नहीं है। इंग्लिश लोग हमेशा रियल बोलेंगे, रियल नहीं कहेंगे, रियल, 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 रियल। एक तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं रे को बोलते हुए, जल्दी नहीं बोलते, थोड़ा सा टाइम लेके, थोड़ा सा गैप लेके फिर बोलते रेंज, रेंज। हमने फौरन ही निकल जाना, स्लिप कर जानी हमारी टंग और आगे, बड़ा स्मूथ है जो रा शुरू में आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अगर आप इम्प्रूव कर सके, डिफिकल्ट है, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये बचपन से हमारी शरीर का हिस्सा बन जाती है, उसको चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। और इस तरह के हल्के से जो इम्प्रूवमेंट की या किसी साउंड को लगाना, किसी को वहाँ से हटा देना, इसमें थोड़ा कॉन्शियसली इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर उसके बाद उसी तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है। समझने में, बोलने में डिफरेंस तो आपने फौरन ही पकड़ लिया कि हाँ डिफरेंस है, और समझ भी लिया कि हल्की सी आवाज़ आती है, लेकिन उसको अपने ऊपर अप्लाई करना, मेंटली अप्लाई करना, अब्जॉर्ब करना, उसके लिए आपको अब एग्जाम्पल्स लिखनी है और उसको उस तरह बोलना है।
खुद बोल के आप अंदाजा करेंगे कि हाँ अच्छा अच्छा ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे। जब तक आप सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं वहां से आपकी इंप्रूवमेंट शुरू होना होता है। तो अब आपने अप्लाई करना है। सो होपफुली व्हाट आई एम सेइंग, माय पर्पस ऑफ सेइंग दिस थिंग इज टू डू प्रैक्टिस। इसी तरह जैसे आप फा था खा की प्रैक्टिस करनी है, अल्फाज लिख के, इस तरह रा की भी प्रैक्टिस करनी है। टाइम हमारे पास इतना ही है आज के, अब जो लेक्चर रह गया उसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस हो सकते हैं बस। अच्छा, अब आ गई है मिडल की बात। जब रा मिडल में आता है ना, इट हैज टू एस्पेक्ट्स। रा के बाद अगला वर्ड, अगला साउंड देखना है हमने, ठीक है। अब रा के बाद जो अगला साउंड है, ए वाली एग्जांपल्स में देखें तो आपको आगे आई नजर आ रहा है वर्ड में, फिर ब्रिज में भी आई है, फिर आर के बाद ए आ रहा है, ठीक है। या मैं कोई अगर वर्ड प्रोडक्ट बोलता हूं, PRO, ओ आ रहा है, तो ये आई ए ओ ये बेसिकली वॉल्स हैं। जबकि बी एग्जांपल्स में देखें कि आर के बाद, आर से पहले नहीं, हम आर के बाद की, ऊपर भी आर के बाद की बात कर रहे हैं कि अगला साउंड क्या है। आर के बाद साउंड वरीड ई की साउंड है जो आई ई है, ठीक है। फिर ब्रिज ई की साउंड है स्पेलिंग तो आई है लेकिन साउंड ई है, ब्रिज। फिर आगे ब्रे ए की साउंड है, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट के बाद आर के बाद एस है, फिर आर के बाद डी है, फिर आर के बाद के, इन सब एग्जांपल्स में आर वर्ड के मिडल में है, लेकिन उससे अगला साउंड कैसा है, इस पे आके हमें देखना है। जो पहले एग्जांपल्स है ना, वरीड, ब्रिज और ब्रेन, आर के बाद वॉल साउंड आ रही है, सो वी हैव टू प्रोनाउंस रा प्रॉपरली। हमें आर को बोलना है और बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं। वरीड आपको आर सुनाई दे रहा है, ब्रिज रिज ब्रिज रा साउंड आपको सुनाई दे रहा है, ब्रेन सुनाई दे रहा है। जबकि बी की एग्जांपल्स में आप आ जाएं, फर्स्ट, बर्ड, पार्क। अब देखें आर में बोल ही नहीं रहा, मैं पार्क तो नहीं कह रहा, आई एम सेइंग पार्क। अब देखिए यहां पे तीन प्रोनाउंसिएशन के रूल्स अप्लाई हो गए। पा शुरू में इसलिए फा हो गया, रा के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो रा को हम नहीं बोलेंगे। यही रूल है कि रा मिडल में कब बोलना है और कब नहीं बोलना। रा के बाद अगर वॉल आ जाए, जैसे वरीड में आया तो रा बोला जा रहा है, वरीड। रा के बाद कॉन्सोनेंट आ गया, वॉल नहीं है। दो तरह की साउंड है, या कॉन्सोनेंट होती है या वॉल होती है। तो ए की जो कैटेगरी है उसको मैं लिख देता हूं कि रा इज यूज्ड, रा कहां पे यूज हुआ है, बिफोर वॉल। तो रा बिफोर वॉल, वॉल से पहले ही आ गया। इधर क्या है, रा बिफोर ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले आ गया। अब ए ई आई ओ यू के अलावा जो साउंड्स होती हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखें एस ए आई ओ यू के में नहीं आता, ए आई ओ यू में, डी ए आई ओ यू में नहीं आता, के ओ आई यू में नहीं आता। आपने रा से अगला साउंड देखना है, ठीक है। तो रा कहां पे आ रहा है, वॉल से पहले आ जाएगा तो रा बोला जाएगा। तो मैं यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, रा इज प्रोनाउंस्ड बिफोर वॉल, वॉल से पहले से हम प्रोनाउंस करेंगे। तो एग्जांपल्स सामने आपके, आपने ही बल्कि दिए हैं। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, रा इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड।
तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं इसकी। राइट, इसमें अब देखें कि हमें किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, हमें इस रूल को इंपॉर्टेंस देनी है। इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं। क्यों इस रूल को इंपॉर्टेंस देनी है? वो इस वजह से इस रूल को इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि ये उर्दू में और इंग्लिश में डिफरेंट है। रा को हम उर्दू में हर जगह बोलते हैं, शुरू में, मिडल में, एंड में, लेकिन इंग्लिश लोग इसको नहीं बोलते। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप कहते हैं फर्स्ट या बर्ड, बर्ड, पार्क, तो कोई और एग्जांपल ज़हन में आती है आपके? तो आप मुझे बताएं। ये देखें, PERSON, आर के बाद क्या है? एस है। हमने आर के बाद देखना है, एस है। एस क्या है? कॉन्सोनेंट। इसका मतलब रा उड़ गया। पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। पर्सन, 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 पर्सन। तो रा को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। इज नॉट प्रोनाउंस्ड, इट इज ड्रॉप्ड। ठीक हो गया? पर्सन, राइट। मैं कहता हूं वर्ड, WORD। अब डी क्या है? रा के बाद आ रहा है, कॉन्सोनेंट है डी, तो ये क्या होगा? वर्ड, वन वर्ड, टू वर्ड्स। अब वर्ड, रा तो इधर नहीं बोला जाएगा। WORK, वर्क नहीं है, वॉक, वॉक। आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क इन माई ऑफिस। तो वर्क, वॉक में डिफरेंस है। तो यही प्रोनाउंसिएशन की चीजें जो उर्दू और इंग्लिश में डिफरेंट होते हुए हमें इंप्रूव करनी है। ठीक है, राइट। एंड की जहां पे बात आ गई है, अच्छा, बिगनिंग के लिए मैं कहूंगा बिगनिंग में आर इज प्रोनाउंस्ड, but differently from उर्दू। उर्दू से डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, रेंज, 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 रेंज। लग ऐसा रहा है जैसे हम अरेंज कह रहे हैं, लेकिन अरेंज और रेंज में फर्क है। तो बोलने से फौरन ही पता चल जाता है आप रेंज कह रहे हो या रेंज कह रहे हो। तो ना तो ये रेंज है, ना ही अरेंज है, बल्कि रेंज। हल्का सा आन है, रेंज। अच्छा, एंड में हम क्या करेंगे? रिगार्डिंग एंड वी हैव टू ड्रॉप। ड्रॉप कह लें या कह लें आर इज नॉट प्रोनाउंस्ड, R is not pronounced। ये ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं हम। ये सारे रूल्स ब्रिटिश इंग्लिश के हैं क्योंकि आइल्स उन्हीं का ही डिजाइन है। सो R is not pronounced। अब कैसे? अब R को अगर हम देखें तो R कितनी साउंड्स हैं? 2 साउंड्स होती हैं R में। R हमने सिर्फ रा को हटाना है। लेट, ट, र नहीं बोलूंगा, र को हटा देना है। लेटर, राइटर, teacher, speaker,